Hello everyone, this is Katie here. In this video, we are going to do EVS chapter 11, Our Earth. This is the second part of the video. This is the second part of the video of Our Earth. In the first part, already I have explained you the first half of the chapter. This is part 2 of our EVS chapter 11, Our Earth. In this part, I'm going to do the rest of the chapter now. Hello student. ये हमारे EVS चैप्टर 11 हमारे EVS चैप्टर 11 हमारी पृथ्वी चैप्टर का दूसरा वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी इसका फर्स्ट हाफ हिस्सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, पढ़ा दिया था। ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बाकी का हिस्सा जानेंगे और पढ़ेंगे। So let's start our chapter now. EVS chapter 11, Our Earth. इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं थोड़ा रिकॉल कर लूं पुराना चैप्टर आप लोगों के साथ। Before we move ahead, I want to recall and revise what I have taught in the video part 1. If you remember, in the part 1, I have done about the difference between a star and a planet. अगर आप लोग को याद होगा, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक तारे और एक ग्रह का अंतर बताया था, दोनों में क्या फर्क है। Then we have discussed about the shape of the earth. उसके बाद हम लोगों ने अर्थ के बारे में जाना कि कितना हिस्सा जमीन है। 70% of its surface is covered with water और 30% is covered with land. And हम लोग सिर्फ एक अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें हम लोग रह सकते हैं। I told you about this also. And after that, in part 1 video, I have also discussed about the shape of the earth. पहले वाले part 1 वीडियो में हमने आपको अर्थ के आकार के बारे में बताया था। And with the help of the ball, this football, I have explained you about the shape of the earth. और इस फुटबॉल और गेंद के माध्यम से और आधार पर इसकी मदद से इसके उदाहरण देते हुए, इस गेंद के उदाहरण देते हुए मैंने पार्ट 1 में बताया था कि हमारे पृथ्वी का भी आकार ठीक इस फुटबॉल की तरह है। I hope you all are remembering. आशा है कि आप सभी को याद आ रहा होगा कि मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था। I hope you all remember. I hope you remember this. I hope you remember this.
Then I have explained you about the shape of the earth by giving an example with football. फिर मैंने आप लोगों को एक गेंद का उदाहरण देकर मैंने पृथ्वी का आकार के बारे में भी बताया था. I hope you remember. Then I have made you understand about gloves and its uses. उसके बाद मैंने आपको ग्लोव और ग्लोव के यूजेस और इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया था. I told you about the gloves that is a replica of the planet Earth. मैंने बताया था ग्लोव हमारे पृथ्वी का प्रतिरूप है. And with what are the uses and importance of gloves I told you. उसके बाद हम लोगों ने किया था कॉन्टिनेंट एंड ओशन. Then we have done continent and ocean in our first video. What are continent, what are oceans I have told you. And I have told you previously it was one continent. मैंने बताया भी था ये पूरी हमारी पृथ्वी जो है वो एक महाभूमि थी. फिर बाद में इसके 7 महाभूमि और 5 महासागर बने. ये मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर. मैंने फर्स्ट वीडियो में यही सब किया था आपके साथ. I told you and in the first video I have also told you about the continent, the names of the continent and oceans in order of their sizes from the largest to the smallest. और मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया भी था आपको कि कॉन्टिनेंट यानी महाभूमि और महासागरों के नाम उसके साइज के अनुसार बड़े से छोटे आकारों में कितने तरह के टोटल 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशंस होते हैं. मैंने नाम भी बताया था. द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट वाज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड द नेम्स ऑफ द oceans were Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean and Arctic Ocean. तो हम लोगों ने यहाँ तक पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था. We have done part 1 video till here. Now ahead. अब हम लोग पढ़ते हैं आगे. Now we will study further. And now we are going to learn about eclipse. तो मैं बता दूं eclipse का मतलब क्या होता है. eclipse का मतलब होता है ग्रहण. The meaning of the eclipse is when nothing, any particular human heavenly body is not seen. That is called eclipses. Now eclipses. The earth experiences 2 types of eclipses, solar eclipse and lunar eclipse. तो पृथ्वी 2 प्रकार के ग्रहण होती है. पृथ्वी पर 2 प्रकार के ग्रहण हम पृथ्वी पर देख सकते हैं. ये 2 प्रकार के ग्रहण हैं सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण एंड लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण. आपने देखा ही होगा सूर्य चंद्र ग्रहण. इफ यू हैव नॉट सीन देन वॉच ऑन द यूट्यूब वीडियो. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब वीडियो में देखें. They will show you the video clips of solar eclipse and lunar eclipse. Now solar eclipse. Now I'm going to explain you and teach you about solar eclipse.
solar eclipse now you can see solar eclipse. Solar eclipse यानी सूर्य ग्रहण. Solar eclipse occurs when the moon blocks the sunlight falling on the earth by coming in between the sun and the earth. Since no light reaches the earth, it becomes totally dark. It may last only for a few minutes. तो सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब मून यानी चांद ब्लॉक रोक देते हैं सूरज की रोशनी जो पृथ्वी पर आते हैं. आज जब चांद बीच पर आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच पर जब चांद आ जाता है और चांद का अंधकार यानी चांद की परछाई जब पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी के उस हिस्से से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता और वहां पूरा अंधकार हो जाता है. इसी स्थिति को हम सोलर एक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण कहते हैं. ये कुछ ही मिनटों के लिए रहता है और फिर हट जाता है. तो आप देख सकते हैं इस चित्र पर. You can see in this picture that between the sun and the earth the moon comes. तो सूर्य ग्रहण में आप देख सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है. तो सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद बीच में आ जाता है और चांद का परछाई पृथ्वी पर पड़ती है. इसी को और ये पृथ्वी के इस हिस्से से सूर्य दिखाई नहीं देता. इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स. सो I hope you have understood how solar eclipse occur and how it take place. आशा करता हूं कि अब तक आप समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण क्या है और किस प्रकार ये होता है. Now we will go to lunar eclipse. अब हम लोग चंद्र ग्रहण की तरफ जाते हैं, पर उससे पहले सोलर एक्लिप्स के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ. We must not see the sun with naked eyes during the solar eclipse as it can harm our eyes. जब भी सूर्य ग्रहण होता है हमें खाली आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली आंखों से आंखें में कुछ चश्मा या कुछ प्रकार के प्रोटेक्शन लेकर अगर हम सूर्य में देखें, अगर खाली आंखों से देखें किसी प्रकार का प्रोटेक्शन ना लेकर, तो शायद हमारी आंखें खराब हो सकती है सूरज की ऊर्जा, एनर्जी और रेडिएशन से. इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पर डायरेक्ट अपनी आंखों से, खुले आंखों से नहीं देखनी चाहिए. इट में अफेक्ट आवर आईज. वी शुड नॉट लुक with the naked eyes to the sun during a solar eclipse. It can harm our eyes. I hope you have understood everything about solar eclipse. अब हम लोग चांद ग्रहण की ओर जाते हैं और हम लोग जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में. चंद्र ग्रहण क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार चंद्र ग्रहण होते हैं और क्या क्या परिस्थितियां होती हैं. Lunar eclipse. Now we are going to study about lunar eclipse. Lunar eclipse mean चंद्र ग्रहण, जिसे हम हिंदी में चंद्र ग्रहण कहते हैं. Let's see how lunar eclipse take place. अब देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है. Lunar eclipse. Lunar eclipse occurs when the earth blocks the sunlight falling on the moon
by coming in between the sun and the moon. It occurs only when there is a full moon. It can last for a few hours. One can look at the moon during a lunar eclipse. जिस प्रकार सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता था, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्र के बीच, सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी के बीच में आने पर सूर्य की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती और सूर्य की परछाई और पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है, जिस कारण चांद दिखाई नहीं देता। इसी स्थिति को लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कहते हैं। आप इस चित्र पर देख सकते हैं कि किस प्रकार चंद्र ग्रहण होता है। You can see how lunar eclipse take place on. In this picture, you can see how lunar eclipse occur. I hope you have understood how solar eclipse and lunar eclipse occur. I should make you remind once again. मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि सूर्य ग्रहण के समय आप देख सकते हैं कि चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और लूनर एक्लिप्स के समय यानी चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण में चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, कि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है। तो यू कैन write this differences also on the basis of this. आप इस आधार पे जिस तरह मैंने आपको समझाया उसके आधार पर आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अंतर भी लिख सकते हैं, differences. So I hope you have understood this full chapter, our earth. आशा है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे। Now, I want to explain you these new words. ये कुछ शब्द है आपके पुस्तक पर जो बहुत जरूरी है समझना, वो भी मैं चर्चा कर देता हूँ। I am explaining the words which you have learned, important words. Discovered. Discovered का मतलब होता है, the meaning of discovered is found. डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज की आविष्कार करना, किसी चीज की खोज करने को कहते हैं डिस्कवर्ड। नाउ द नेक्स्ट मीनिंग इज मास। द मीनिंग ऑफ द मास इज लार्ज बॉडी। मास का मतलब होता है बहुत बड़ा, किसी शरीर का हिस्सा, किसी भी वस्तु का बहुत बड़ा हिस्सा को मास कहते हैं। नाउ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। नॉर्थ पोल का मतलब होता है पृथ्वी का सबसे उत्तरी दक्षिणी की सबसे ऊपरी वाला कोना को, नॉर्दर्न मोस्ट सबसे उत्तरी भाग को, जिसके आगे पृथ्वी खत्म होती है, उसे नॉर्थ पोल कहते हैं। और साउथ पोल द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के दक्षिणी ओर में, जहां पृथ्वी खत्म होती है, सबसे दक्षिणी ओर की सबसे अंतत
हिस्सा साउथ पोल कहते हैं। नाउ व्हाट इज रेप्लिका? रेप्लिका मीन अ कॉपी। एज आई टोल्ड यू, रेप्लिका मीन्स अ कॉपी, द मॉडल। रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिरूप। ठीक उसी प्रकार का जब कोई चीज सामने आए उसे रेप्लिका कहते हैं, यानी उसका कॉपी, प्रतिरूप। सो I hope you have understood this chapter fully. You have understood this chapter, our earth. आशा है आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आवर अर्थ को 2 हिस्से में पढ़ाया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। 2 वीडियो आपको दिखाएं। आवर अर्थ, EVS chapter 11, our earth. I have given you 2 videos and I have explained you in these 2 videos the whole complete chapter 11 of EVS, our earth. I hope you have understood. मैंने 2 वीडियो बनाए, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इस दोनों वीडियो में, पार्ट 1 पार्ट 2 में, मैंने EVS के चैप्टर 11 आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी का पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आशा है आपको समझ आया होगा। So now I'm ending my video. Happy digital learning. Goodbye. See you again.